So today we'll be starting the new topic, construction. How many of you have already completed this? किसके यहाँ हो चुका है, खत्म हो गया? दो तीन ही है, तो अभी किसी के यहाँ हुआ है नहीं स्टार्ट ये? There is a question that the very first question, AB is available to us as 6 centimeter, a line segment, right? And we need to divide this line segment in the ratio 4:3, right? Let this is C. So AC by BC should be available to us as 4/3. यही है ना पहला क्वेश्चन, देखना in the MIQ itself, है ना? So those who did it can suggest me what actually need to be done. कैसे करना है इसे कि ये लाइन जो है 4:3 की रेशियो में डिवाइड हो जाए. तो जिसने किया प्लीज सजेस्ट मी क्या करें. किसने किया अभी? देखो क्या करना है, प्लीज सी हियर. अभी आपने करना है, इसे एग्जीक्यूट करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल. लेट ए बी is equal to 6 centimeter. Then you are supposed to make an acute angle, any acute angle ABX. First, draw AB equal to 6 centimeter, and second, create an acute angle XAB. बोलो मत प्लीज, ध्यान दो. Then 4 plus 3 amounts to what? 4:3 की रेशियो है ना, तो 4 plus 3 is 7. Divide this X into 7 equal parts. This is A1, this is A2, this is A3, this is A4, this is A5, A6 and followed by A7. You just with the help of compass make equal arcs on the same line segment, right? And thereby divides this entire AX into 7 equal parts as shown here. The moment it happens, immediately join A7B. इसे join कर देना, ठीक है ना? The moment it gets joined, अब आपने क्या करना है, 1 2 3 4 यानी कि थर्ड A1 equal to A1 A2 equal to A6 A7. Let it be equal to any X dimension, right? And the fourth one is joined straight away, A7B. The fifth one, 4:3, 1 2 3 4. That means I'm talking about the point A4. From A4, create a line segment A4C, which has to be parallel with A7B. Do you know how to draw the parallel line? You must have executed drawing the parallel line right from your 7th standard. 7th standard से आप parallel lines को draw करते आ रहे हैं. अब कैसे करना है फिर भी मैं बताता हूं आपको. A7 से हमें इस तरीके की एक लाइन क्रिएट करनी है which has to be parallel with this. That's what I am saying. Take A7 as a center and any desirable arc. मैं यही आर्क ले रहा हूं, A7 A6 आर्क मैंने लिया. फिर सेम आर्क A7 A6, सेम आर्क A4 से, right? Then this as a center, this as a center, make an arc equal to this line. ये आर्क इस लाइन की कहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है. सेम यहाँ पर सेंटर लिया, कट इट and then join it. So this A4 once extended meets AB and C, right? So the whole purpose is of creating a triangle in the form of A7B.
A7B, where A4C must be parallel to BA7. These two lines are parallel. And the moment it happens, eventually it arises as 4:3. Now the question arises, what's the assertion, what's the justification? अगर ऐसा है तो क्यों है? Can anybody suggest me? The only hint, no, I don't want to give hint. अगर hint दे दिया तो आपको immediately answer पता लग जाए. मैंने क्या किया, मुझे असली मकसद था AB को 4:3 में कन्वर्ट करना, यानी कि AC by BC को क्रिएट करना है 4/3, राइट? और उसे क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ 7 पॉइंट्स लिए, यहां से ज्वाइन कर दिया और कुछ नहीं किया, इसके पैरेलल A4 पर लाइन क्रिएट कर दी. सिमिलर ट्रायंगल, यस ऑफ कोर्स. सिमिलर ट्रायंगल में भी कौन सा कॉन्सेप्ट? दैट्स इट, Thol's theorem becomes the answer. The answer of this question is actually based on the concept of BPT theorem. And what the theorem states, if a line intersecting any two sides of the triangle, parallel to the third side, divides these sides in the same ratio. Right or not? हमने किया था. That means AC by BC must be equal to A4 by A4 A7. But this line is parallel to this line, BPT theorem. This upon this must be equal to this upon this. This is what? 1, 2, 3, 4. So I can write it as 4x. This is 1, 2, 3, 3x. And hence the ratio arises as 4/3. Clear हो गया या नहीं? Do it right now. इसको सेंटर लिया, यूं क्रिएट किया, यहां इसे सेंटर लिया, इस तरीके से क्रिएट किया, राइट? और फिर उसके बाद क्या किया, यहां से सेंटर के इतना कट लिया और यहां से यहां A4 A6 मैंने आर्क ले लिया, A4 A3 का आर्क ले लिया मैंने, और फिर इसे सेंटर लेकर ये जो आर्क है इस लाइन को कट कर रही है ना, यहाँ तो जितनी आर्क लेंथ है उतनी आर्क लेंथ यहां लेके ड्रॉ कर दिया. क्या बेटा? यस ऑफ कोर्स कंपल्सरी करना है, अदरवाइज आंसर तो गलत माना जाएगा. रबड़ इरेजर होगा वहां पर, स्केल और बेटा कंपास होगा मेरे कमरे में टेबल के ऊपर. शायद मैंने रिंकू से बोला था कि वहां रख जाए, आप एक बार चेक कर लें प्लीज. एवरीबडी एग्जीक्यूट द सेम. 5:2, 6:3, ये होमवर्क है, राइट? दिस नीड टू बी डन वेयर AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. अब एक बात ध्यान रखनी है, यू शुड हैव 3 काइंड ऑफ पेंसिल्स along with you. The first one is AB, the second one is H++. There are the 3 kind of pencils available to us. ये जो हमारे पास पेंसिल है, नॉर्मल पेंसिल है जो, इसका लेड बहुत ज्यादा डार्क है, isn't it? आपने इस पेंसिल के थ्रू काम नहीं करना है, कोई भी कंस्ट्रक्शन इससे नहीं करनी है. आपने H या 2H पेंसिल को लेना है, और वो इंजीनियरिंग पेंसिल होती है. और H पेंसिल से और 2H पेंसिल का यूज कैसे करना है, प्लीज सी हियर. AB शुड बी विद H पेंसिल, BAX शुड आल्सो बी विद H पेंसिल. इज दैट क्लियर? सॉरी मैं गलत बोल गया. AB विद H पेंसिल, BAX विद 2H पेंसिल, क्योंकि BAX क्या है, हेल्पिंग कंस्ट्रक्शन है. हेल्पिंग कंस्ट्रक्शन शुड बी डन विद 2H पेंसिल बिकॉज द 2H इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पेंसिल, जिसकी लेड की जो थिकनेस है, जो उसकी डार्कनेस है वो लीस्ट है. तो हमें हेल्पिंग कंस्ट्रक्शन को उस लेड से करना है, उस पेंसिल से करना है जिसकी डार्कनेस सबसे कम हो, क्योंकि हेल्पिंग कंस्ट्रक्शन हमें डार्क नहीं दिखानी है.
हमें जो सिर्फ डार्क दिखाना है वो हमें ए बी को डार्क दिखाना है, ए सी और बी को डार्क दिखाना है, और बी ए एक्स एक्सेट्रा ये जितनी भी A1 A2 एक्सेट्रा ये सब हेल्पिंग कंस्ट्रक्शन एंड ऑल शुड बी ड्रॉन। क्योंकि मेन क्वेश्चन क्या था, मेन क्वेश्चन है ए बी को ए सी और बी सी में इस रेशियो में बांटना, यानी कि ये मेन कंस्ट्रक्शन है। और ये मेन कंस्ट्रक्शन तो हमारी एच पेंसिल से होगी। बाकी की जो कुछ भी मैंने काम किया हुआ है, इंक्लूडिंग द आर्क, इंक्लूडिंग रीडिंग द पैरेलल लाइंस, इंक्लूडिंग दिस एंगल, एक्यूट एंगल, एवरीथिंग मस्ट बी डन विद द 2H पेंसिल। इट इज द मोस्ट फेंट वन, सबसे फेंट पेंसिल जो होती है वो 2H पेंसिल होती है, राइट। एंड देन उसके बाद इंटरमीडिएट डार्कनेस वाली H होती है। लेकिन अगर HB से सारा काम कर दिया, अगर सारी कंस्ट्रक्शन HB से किया ना, इट्स विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डिफरेंशिएट between the helping construction and the main construction. Even though everything is absolutely correct, you will get 50% marks, right? The construction criteria states that the main construction along with the helping construction should be differentiated properly. Visibility दोनों की बिल्कुल अलग होनी चाहिए। यानी कि here we are not supposed to use the concept, but also the art of presenting the answer is equally important, right? इस बात का खास ध्यान रखना। HB को आप जनरली अवॉइड कर दो कंस्ट्रक्शन में खासकर, और ये आम इंजीनियरिंग मटेरियल जहाँ मिलता है, बुक्स मिलती हैं वहाँ मिल जाएगा आपको। नॉर्मल स्टेशनरी शॉप्स के ऊपर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है इन पेंसिल्स का, राइट? क्या हटा दूं मैं, ऐसे कर लोगे ना? जस्ट रीड, समझ में? हाँ सर, वो जो A7 से 8 बनाई थी वो AB CB में से वो वाली लाइन मैंने तो कर दिया ना। दे इधर आओ, आपको समझ में? आप किस किस की पैरेलल लाइन नहीं ड्रॉ हुई? इधर आओ दोनों। ये A7 मैंने पॉइंट्स ले लिए, फिर मैंने A7 A6 सेम आर्क यूं क्रिएट कर दी, या A4 A3 क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम है, क्रिएट कर दी। इसको सेंटर लिया, जहाँ कट कर रहा है उतनी आर्क ली, इसको सेंटर लिया, इतना कट के इसे ज्वाइन। हाँ बिल्कुल, यहाँ A6 से ये जो आर्क लिया है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस आर्क, मैं इस आर्क की बात कर रहा हूँ, वही आर्क यहाँ लेनी है। सर इसकी लेंथ भी सेम हो चाहिए ना, इसकी और इसकी सेम हो चाहिए लेंथ? नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो 60 डिग्री का एंगल बन गया। वो नहीं करना एक्चुअली। ये तो सेम ले लो आप, आसान रहता है। इसको तो सेम ले लिया, एक्स ले लिया, लेकिन यहाँ सेम थोड़ी ना है। यहाँ तो आपको इतना कट करना पड़ेगा, यहाँ से भी आपको इतना कट करना पड़ेगा। देखो मैं क्या कह रहा हूं, प्लीज एवरीबडी सी हियर। जिसको थोड़ी भी पैरेलल लाइन में दिक्कत है, हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया था ना, ये इक्वल पार्ट से। इस इक्वल पार्ट में इससे सेंटर लो विद द हेल्प ऑफ कंपास, और ये जितनी भी आर्क एक्स थी ना हमारी, यहां से एक्स ही तो करते आ रहे हैं हम, यानी कि हमने 1 सेंटीमीटर की आर्क ले ली, तो ये A7 A6 A7 1 सेंटीमीटर की आर्क से यूं कट कर दो। और ये मान लिया A4 है, तो यहां से भी ये कितना है, उसी को कट कर दो। एक आर्क यूं ड्रॉ कर दी, एक आर्क यूं ड्रॉ कर दी। बट एज फार एज द आर्क फ्रॉम दिस पॉइंट एज ए सेंटर टू दिस पॉइंट would definitely be different from this, है नहीं? आपने देखा ही होगा, ये यहां से सेंटर लिया, इतना कट किया, उसको यहां उठा के रख दिया, यहां कट किया, ज्वाइन कर दिया, पैरेलल लाइन आ गई ना बेटा। पैरेलल लाइन लाना ही असली खेल है, बाकी तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, राइट? भाई सबका आंसर आया या नहीं आया? अच्छा, सामान किसके पास नहीं है ना सामान? ठीक है। मैंने 2 क्वेश्चन और दिए थे, वो घर पे करना। इसकी प्रोबेबिलिटी है लेकिन इंटरमीडिएट है इतना। अगला क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या है अगला क्वेश्चन? ये अगर मोबाइल रुक जाए तो देख बता देना बेटा एक बार। हाँ भाई, हो गया? हाँ, व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन?
जरा दिखाना, MIQ दिखाना बेटा। MIQ मिला है आपको? सो वी नीड टू क्रिएट ए ट्रायंगल। MIQ मुझे भी तो, कई बच्चों को नहीं मिला। दिखाना बेटा आप। एक ट्रायंगल बनाना है, जिसमें AB 4 होना चाहिए, BC 5 होना चाहिए और AC कितना होना चाहिए? 6। ये तो बड़ा आसान है कंस्ट्रक्ट करना। BC ले लो 5, P को एज ए सेंटर लेके एक आर्क ले लो 4, C को एज सेंटर लेकर एक आर्क ले लो 6, ज्वाइन कर दो, बन गया ABC, राइट। अब इसी ट्राइंगल के सिमिलर एक और ट्राइंगल बनाना है, एंड दैट ट्राइंगल मस्ट बी, मैं कहता हूं A'BC होगा वो ट्राइंगल। एंड एवरी, ये जो नया ट्राइंगल बनाना है वो पुराने ट्राइंगल का की हर साइड कितनी होनी चाहिए? 2/3। वी नीड टू क्रिएट अनदर ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ दिस ट्राइंगल। ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूं। एक और ट्राइंगल बनाना है, ये ट्राइंगल बनाना है और उसकी हर साइड इस मेन की कितना होना चाहिए? 2/3 होना चाहिए, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं AC कितना 6, सो 2/3 इंटू 6 कितना आया? 4। तो कुछ इस तरीके का ट्राइंगल हो, A', B तो है ही, C', तो AC कितना होना चाहिए? 4। इसी तरीके से A', B' इसका कितना होना चाहिए? AB का, AB इंटू 4, 8/3, दिस शुड बी 8/3, और दिस शुड बी B', मस्ट बी इक्वल टू 2/3 ऑफ BC। BC कितना है? 5, 10/3। मेजरमेंट से आने चाहिए, ये नया ट्राइंगल बनेगा। यानी कि एवरी साइड ऑफ द ट्राइंगल विच इज नीड टू बी रिक्वायर्ड इज डेफिनेटली लेस देन द लेंथ ऑफ मेन ट्राइंगल, द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द मेन ट्राइंगल। 2/3 तो कम ही हुआ ना, इट इज डेफिनेटली लेस देन 1। यानी कि जो दूसरा ट्राइंगल बनाना है वो मेन ट्राइंगल से छोटा ही होगा, राइट। तो देखो हम कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहला काम होगा हमारा, हम BC ले लें 5, अब हमें AB क्या चाहिए? हम मालूम है ना ये ट्राइंगल ABC, AB कितना हो? 4। विद B एज ए सेंटर टेक एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर, विद B एज ए सेंटर टेक एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर, राइट। विद C एज ए सेंटर टेक एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर, ज्वाइन इट। So this is the required triangle with AB as 4, BC as 5, AC as 6. Now we need to create another triangle whose every side is 2/3 of this triangle. That means this triangle must be smaller than this, and hence this triangle would be available within this triangle. ये ट्राइंगल कहाँ होना चाहिए? इसी ट्राइंगल के अंदर होना चाहिए, राइट। और इसे एग्जीक्यूट करने के लिए अब हम क्या करेंगे? ये तो क्लियर हो गया होगा, आसान है। CBX एक एक्यूट एंगल बना दो आप, कोई भी एक्यूट एंगल, राइट। कितना है? 2/3 बनाना ना हमें। डिनोमिनेटर में कितना है? 3। डिनोमिनेटर होता है 2/5 तो कितना लेते हम? राइट। अगर होता 3/7 कितना लेते हम? क्लियर। तो 3 पार्ट्स ले लो, 1 2 3, B1 B2 B3, क्लियर। और जैसे ही ये लिया B3 और C को सीधा ज्वाइन कर दो, राइट, क्लियर है। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा? एंगल लेंगे हम CBX, एक एक्यूट एंगल, और फिर हम लेंगे B1 B2 B2 B3 इक्वल टू व्हाट? X, और फिर ज्वाइन B3C। और अब हमने क्या करना है? 2/3, 1 2, यानी कि यहां
I need to create B2C dash parallel to B3C. कैसे करूंगा? सेम आर्क, सेम आर्क, फिर इसे सेंटर लिया, कट, इसे सेंटर लिया, this line would be parallel with this and named it as C dash. Clear? This, then this. Clear? है बेटा? क्लियर है ना? यहां तक आपने इसको लिया है, फिर यहां इसको सेंटर लिया, इसको कट किया, फिर यहां से सेंटर लिया, इसको कट किया, ज्वाइन कर दिया, ये लाइन दोनों पैरेलल आ गई. राइट? अब नेक्स्ट काम क्या होगा? इसके पैरेलल हमें ये लाइन लेनी है एंड वी विल बी हैविंग ए डैश सी डैश पैरेलल विद ए सी. वो क्या करेंगे? अगेन here what I did, this one, cut, join this. तो ऐसा करते ही ऑटोमेटिकली हमारा ट्राइंगल आ गया. दैट इज द ट्राइंगल व्हाट? ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश हुज एवरी साइड इज डेफिनेटली 2/3 ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और वी कैन से द होल ट्राइंगल इज 2/3 ऑफ दैट. जस्टिफाइड. क्या एविडेंस होगा? कौन बताएगा? टेल मी व्हाट्स द रीजन? एनीबॉडी? ट्राइंगल सिमिलर नहीं है. अरे बी सी डैश ए डैश इज सिमिलर विद बी सी ए. दे आर सिमिलर एंड इफ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. Thols theorem भी लिख सकती है नहीं. The corollary of the Thols theorem can also be implemented. And what's that? BC dash divided by BC. BC dash कितना होगा? 2 और BC क्या होगा? ठीक है ना? So as triangle हम ये भी कह सकते हैं AC और ये पैरेलल है, तो according to the Thols theorem also. Otherwise B A dash C dash is similar with triangle बी ए सी. ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स में बात हो रही है, तो हम ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी को लेके चलेंगे. अगर ऐसा होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. ए डैश सी डैश डिवाइडेड बाई व्हाट? ए सी. यू विल फाइंड इट एज व्हाट? 2x बाई 3x. दिस एंड दिस कैंसल्स. तो रेशियो कितनी आ गई? 2/3. करो इसे कंप्लीट. आवाज आ रही कि बाहर कोई बातें कर रहे हैं. बंद. Is it clear? Make it. See, I am also doing the same in front of you. AB is 4. BC 5 है ना?
This is the required answer in front of you. बताओ मैंने क्या किया, किसी को डाउट हो तो? वो तो मेजरमेंट से बनाना है ऑब्वियसली। BC कितना था? 5 लिया है मैंने, ये 4 लिया है, AB 4 है, AC 6 है। इसमें मैंने BC लिया है कितना? 5, AB ऑलरेडी लिया है 4, AC लिया है 6। फिर मैंने ये इस तरीके से एक एक्यूट एंगल ले लिया और थोड़ी बड़ी आर्क ले ली जिससे कंस्ट्रक्शन करना आसान हो जाए। देखो तुम्हारे सामने 1 2 3, जैसी आर्क लिया फिर इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करते ही मैंने इसे सेंटर लिया, इसे कट किया, यहीं सेंटर लिया, इसको कट किया, फिर यहां रखकर इस डायमेंशन को लिया, इसे ज्वाइन कर दिया। और फिर मैंने क्या किया, यहां से ये लिया, बिल्कुल यहां से इसी को भी लिया, फिर यहां रखा, इसे कट किया, इसको कट किया, ज्वाइन कर दिया, बन गया। और जस्टिफिकेशन लिखना जरूरी है कि भाई द व्हाट्स द एविडेंस बिहाइंड इट इज अ डेडली कंफर्म्ड क्वेश्चन। द ओनली डिफरेंस इज द रेशियो माइट बी डिफरेंट। क्लियर? तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है, एंड वी नो दैट if the triangles are similar, the ratio of the corresponding sides are proportional. This side upon this side, this side upon this side, and base upon base. और आप मेजर करके भी देखना, आप ये देखना कि AC A dash C dash कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। A dash C dash must be 4 क्योंकि AC कितना है? 6, ये 4 होगा, राइट? तो ये कितना था हमारा? 4, तो ये 8/3 होगा, ये इसकी लेंथ, इसकी 10/3 आएगी। कर देख लो आप डायमेंशन में, तो आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। ऐसे ही हुआ है ना? क्लियर? दैट्स इट। दिस इज अ सेक्शन D 4 मार्क का क्वेश्चन है। जो पहली कंस्ट्रक्शन थी बेटा वो सिर्फ 3 मार्क्स की थी, अब ये सारी 4 नंबर की कंस्ट्रक्शन है। बड़ा आसान काम है, बहुत इजी। क्लियर? So should I rub this? हुआ या नहीं आ रहा? थोड़ा प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, प्रोसेस पता होनी चाहिए। अगर अगला क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हटाऊं? ये कई सालों से मैं सेमेस्टर सिस्टम में देख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 भी। अब पहले ना देखो, रफली फिगर बनाया करो, हर कंस्ट्रक्शन की रफ फिगर बनाया करो पहले अपने आप से। जैसे 3rd क्वेश्चन है, जरा उसकी रफ फिगर अपने आप बनाना, मतलब अपने आप ही यूं ही बना दो रफ फिगर के, क्या इसमें गिवन है। 3rd पढ़ो और उसकी रफ फिगर बताओ। Those who are attending class online should also make the 3rd question roughly. You all should have MIQ DPP 1 construction topic, 3rd question. हमें बनाना ट्राइंगल ABC। B कितने डिग्री का होना चाहिए? 60 का होना चाहिए। अच्छा, C
ट्राइंगल यू बनेगा, देखो पता लग जाता ना। मैंने क्या लिखा पहले, नॉर्मल ABC लिख दिया, फिर एंगल बी को क्या लिया मैंने 60 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि एक एल्टीट्यूड भी क्रिएट करना है CL3, तो यानी कि एल्टीट्यूड मुझे यूं क्रिएट करना पड़ता। अब यूं क्रिएट करना है टीडीएस जॉब, नाम ही ना बदल दें हम A वर्टेक्स ना लेकर C को वर्टेक्स ले लें। AB को कितना ले लिया मैंने 4 सेंटीमीटर, B पे कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए, और CL एल्टीट्यूड कितना होना चाहिए, इसकी भी लेंथ की मैंने 3 सेंटीमीटर, राइट। और फिर इसके साथ साथ इसके अंदर, अंदर नहीं, अंदर या बाहर एक ट्रायंगल बनाना है हमें। ट्रायंगल ABC तो बना दिया हमने, ये ट्रायंगल तो बन गया। फिर एक और ट्रायंगल बनाना है और वो ट्रायंगल का नाम होगा ट्रायंगल ADE, जिसकी हर साइड मेन ट्रायंगल के, ओरिजिनल ट्रायंगल की कितनी होनी चाहिए 3/2। तो बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए, ऑब्वियसली। तो ADE ट्रायंगल ट्रायंगल के अंदर होगा या बाहर होगा, बाहर होगा। तो यानी कि कहना ये चाहता है AD नहीं है, ये B कर दो, ABE, या चलो AD लिखा है तो AD कर सकते हैं हम। क्या करेंगे हम, ये तो क्लियर हो गया। हमें पहले तो ये मेन ट्रायंगल्स ऐसे सही बनाना है जिसमें CL 90 डिग्री का हो। डायमेंशन कितनी है उसकी 3 सेंटीमीटर। यानी कि मैं AB को प्रोड्यूस करूं, AB को प्रोड्यूस करूं और CB के एक लाइन पैरेलल ले लूं, बढ़ा दूं उसे, और यहां AC को भी बढ़ा दूं। ट्रायंगल कौन सा होना, ADE बन गया नहीं, कुछ नहीं करना मैंने। जैसे ही ABC बनाया, ABC का ये एंगल 60 है, यहां भी 60 बना दिया, सीधा खींच दिया, AC को प्रोड्यूस कर दिया। दैट मीट्स दिस DE एट E एंड हेंस द रिक्वायर्ड ट्रायंगल कौन सा हो गया ADE। द एवरी साइड ऑफ ADE इज ऑब्वियसली कितनी 3/2, यानी कि AD कितना होगा, AD इज 3/2 ऑफ AB। AB कितना है 4, तो कितना आना चाहिए, AD की लेंथ कितनी होनी चाहिए। ऐसे हर साइड को मेजर कर लेना, क्लियर हो जाएगा आंसर सही है या गलत है। नाउ द पर्पस इज टू क्रिएट दिस। अब देखो क्या करेंगे, स्टेप 1 हम पहले लेंगे AB। सबका ध्यान यहां होना चाहिए, कोई कुछ नहीं करेगा। AB कितना होना चाहिए 4 सेंटीमीटर, एंगल B 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, आपने इसको 9th में भी किया था, अब 6, 7 से भी करते आ रहे हो। ये ले लिया, ये ले लिया, सेम एंगल, राइट। ये 60 डिग्री का एंगल बन गया ABX। ABX आ गया अपना 60 डिग्री। अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे एल्टीट्यूड लेना है। अब ये गिवन नहीं है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कहां गिवन है, ये तो एक नॉर्मल ट्राइंगल है। नॉर्मल ट्राइंगल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल ट्राइंगल में जो वर्टेक्स है यहां C है, उसका बेस से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, उसका बेस से कितना होना चाहिए। ये ट्राइंगल किस नेचर का है, गिवन नहीं है, इसलिए हमारे लिए थोड़ी दिक्कत हो गई। अगर ये ट्राइंगल आइसोसेलेस होता तो हम क्या करते, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्रिएट कर देते, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में इसको लेते हैं मिड पॉइंट, और एक आर्क ले लेते 3 सेंटीमीटर की, ज्वाइन कर देते, हो गया काम। समझ में आ रहा है। या इक्विलेटरल ट्राइंगल होता तो भी कर सकते थे, लेकिन इट्स नाइदर इक्विलेटरल नॉर आइसोसेलेस, वी आल्सो डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ट्राइंगल इट इज। तो जो भी है उसमें वर्टेक्स C ऊपर होना चाहिए, और उस C की लेंथ बेस से कितनी होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर। ये काम करना है, और इसका करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम AB पर वो सेंटर लेकर एक यूं ही आर्क डाल देंगे 3 सेंटीमीटर की। फिर हम B को सेंटर लेकर एक और आर्क हम क्रिएट कर देंगे 3 सेंटीमीटर, और यहां एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। दोनों आर्क को टच करती हुई एक लाइन जाएगी, राइट। लेट दैट लाइन इज XY। दिस 3, obviously this the top point of the arc must lie on the same straight line, ज्वाइन कर दिया।
अभी जो स्ट्रेट लाइन एक्स वाई है वो बी एक्स को कहां कट कर रही है? सी पर, राइट। और कट करते इसे ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास ट्राइंगल आ गया है नहीं? वी हैव द ट्राइंगल ABC। और इसको जब आप इवेंचुअली मेजर करेंगे तो ये कितना आएगा, राइट। और वो कैसे? यहां पर हमें क्या करना होगा, दिस पर्टिकुलर लेंथ ऑलरेडी कितनी है, परपेंडिकुलर, राइट। तो यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हमारे लिए कोई टीडियस काम नहीं है। हमारे पास लेंथ आ गई, वर्टेक्स का डिस्टेंस बेस से 3 सेंटीमीटर आ गया। अब जब हम छोटा ट्राइंगल अंदर क्रिएट कर रहे थे तो हमें नीचे लेना पड़ता था। अब हमें बड़ा ट्राइंगल क्रिएट करना है, कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल क्रिएट करना है, तो काम उल्टा आसान हो गया। हमें ट्राइंगल बनाना है ADE, यानी कि AD जो कि बेस है, AD बेस ही तो होगा। ये AD अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसकी साइड जो होनी चाहिए वो 3/2 होनी चाहिए, किसकी? AB की। यानी कि 3/2 AB कितना है बेटा? 4। कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। यानी कि आई शुड एक्सटेंड AB टू पॉइंट D सच दैट AD कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। सच दैट AD हैपन्स टू बी 6 सेंटीमीटर। क्लियर? Rest the job is very easy. This angle is 60 degree and from D also makes an angle of 60 degree. Produce it, right? And also produce this AC to intersect over here at C dash. Yeah, C dash नहीं, E. This was 60. Take AD as 6. क्यों 6? ये भी क्लियर हो गया। फिर यहां B पे 60 है, D से भी 60 डिग्री का एंगल ज्वाइन कर, ड्रॉ कर दो, इसको भी ज्वाइन कर दो। तो व्हाट अगेन आई एम अचीव्ड विद ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विद ट्राइंगल ADE, and once the triangles are similar, corresponding sides are proportional, right? And hence we can say that ADE by AB is equal to CE by BC is equal to AE by AC. चेक भी करके देख लेना, you will get it as 3/2, right? So that ratio comes out to be what? 3x by this is, क्योंकि क्या ये 6/4, ये 6 अपने आप आ जाएगी, ये 4 होगी, ये 6 तो सॉरी हमने लिया है। अब इस लेंथ को देखो AE, ये 3/2 होगा AC का, मेजर करके देख लेना। करो, कंप्लीट इट। समझ में आया? मैं भी कर रहा हूं, जिसे थोड़ा डाउट है वो यहां देखो, मैं अब इसको प्रैक्टिकली आपके सामने कर रहा हूं। मुझे लेना है AB 4 सेंटीमीटर। प्लीज जिसे थोड़ा भी डाउट है वो यहां देखो, बाकी मत देखना। AB 4 सेंटीमीटर, एंगल B पे 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री एंगल के लिए कुछ नहीं करना, जो भी मन चाहिए आर्क ली, यहां को सेंटर लिया, ये बन गया 60 डिग्री का एंगल। जैसे ये 60 डिग्री एंगल बना, राइट, फिर यहां से 3 सेंटीमीटर की एक आर्क को मेजर किया, और इसको ज्वाइन कर दिया, राइट। ज्वाइन किया तो हमने पाया कि ये लाइन एक्स वाई BX को कहां कट कर रही है? C पर। इसे ज्वाइन कर दिया। तो आप देख लो ये कितनी आ गई ऑटोमेटिकली, 3 आ गया है नहीं? C का AB से कितना डिस्टेंस है? 3। अब क्या करो, AD जो होना चाहिए 3/2 और 4 होना चाहिए, तो इसको एक्सटेंड कर दो, 6 हो गया।
ये हो गया डी। ये एंगल ऑलरेडी 60 का, पैरेलल लाइंस क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्रिएट करना। ये 60 है तो यहाँ भी कितने का होना चाहिए, 60 का। बल्कि 60 बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी ले लो आप, सेम आर्क। और यहां इसको ज्वाइन कर दो, सी डैश, सी डैश नहीं, यहाँ ए डी ई है ये, तो आ गया ना। ट्राइंगल ए डी ई इज अवेलेबल whose every side is 3/2 of triangle ABC। यानी कि अपना AE क्या होना चाहिए, 3/2 ऑफ AC होना चाहिए। मेजर कर लेना AC जितना भी होगा। और हमारा DE कितना होना चाहिए, 3/2 ऑफ BC। हैंस द आंसर। क्लियर। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हो कि राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन तो लिखना, अदरवाइज बिल्कुल मत लिखना। राइट, लास्ट ईयर तक तो ये कंफ्यूजन था। उतना ही लिखो जितना पूछा जाए। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने का अगर टाइम है तो लिखना, अगर जब है ही नहीं तो कंस्ट्रक्शन बना देनी है बस। अदरवाइज द क्वेश्चन विल आस्क यू टू राइट द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। नहीं पूछा तो देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग इट। व्हाई टू वेस्ट टाइम, क्योंकि लिखने में जितना टाइम वेस्ट होगा उतना तो कंस्ट्रक्शन में भी नहीं होने वाला। अब एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें एक पैराग्राफ ही बन जाएगा कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स को लिखने का, कितना टाइम वेस्ट हो सकता है। राइट, इसलिए सिर्फ कंस्ट्रक्शन करनी है। और इस कंस्ट्रक्शन के अंदर सिर्फ ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल डार्क होना चाहिए, सारी हेल्पिंग कंस्ट्रक्शन फेंट होनी चाहिए। इज दैट क्लियर। सिर्फ दिखाई दे तो कंस्ट्रक्शन दिखाई दे, हेल्पिंग कंस्ट्रक्शन बहुत फेंट, और ट्राइंगल दो ही दिखने चाहिए, ए बी सी, ए डी ई डार्क। मतलब विदाउट स्पेक्स, अगर कोई टीचर स्पेक्स वाला है, विदाउट स्पेक्स से कंस्ट्रक्शन दिखाई ना दे, विद स्पेक्स उसको कंस्ट्रक्शन दिखाई दे। समझ में आया, सिंपल एज दैट। इतना क्लीन होना चाहिए काम। राइट, आर्ट की भी बड़ी वैल्यू है यहां। लेकिन अगर आप ए बी से करोगे ना तो कंस्ट्रक्शन, मेन कंस्ट्रक्शन सब एक ही डार्कनेस के साथ दिखाई देगी, मार्क्स कट जाएंगे। राइट, हटाओ इससे, जल्दी जल्दी करो। CL3 कैसे, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस 3 सेंटीमीटर, XY कर दिया हमने। इस स्टॉप को इस स्टॉप के साथ ज्वाइन कर दिया। लेकिन ये जो लाइन है वो BC को यहां कट करेगी या नहीं करेगी, दैट पॉइंट इज डिनोटेड एज C। ज्वाइन कर दो इसी, इस लेंथ को मेजर करके देख लो, यू विल गेट इट एज 3। नहीं, रीजन की जरूरत ही नहीं है, बट अंडरस्टूड है, क्योंकि आपने यहां 3 लिया, यहां 3 लिया है। नो नीड टू राइट एनी रीजन फॉर दैट। क्लियर बेटा, आ रहा है ना आंसर, आ रहा है आंसर। कंस्ट्रक्शन हो पा रही है ना। सेतु मैम से बात हो गई आपकी?
राइट? कितनों का आंसर कंप्लीट हो गया? फोर्थ की मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? ट्राइंगल बनाना है एबीसी, जिसमें AB 5, CA 6 और AB 7 होना चाहिए। राइट? AB 7 और एक और ट्राइंगल बनाना है विच इज सिमिलर टू ट्राइंगल बनाना है A डैश B C डैश, जो कि हाँ क्या BD क्या बेटे? बोलो मत, बात मत करो बिल्कुल। इज आस्किंग समथिंग। हाँ हाँ, AB A से ही AD कर दो ना 6 सेंटीमीटर। BD और 2 का मतलब वही हो गया, बात तो एक ही है। राइट? आ गया ना आंसर? देखो ये है असली फिगर। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले BC को लेंगे 5, प्लीज बात मत करो। दिस BC इज 5 सेंटीमीटर। B को सेंटर लिया, 7 सेंटीमीटर की आर्क ले ली। C को सेंटर लिया, 6 सेंटीमीटर की, यहां है 7 सेंटीमीटर, यहां 6 सेंटीमीटर ज्वाइन कर दिया। राइट? अब हमें क्या करना है? कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल सिमिलर टू दैट whose side is 7 by 5. So I need to construct BC dash which must be 7 by 5 of what? Clear है या नहीं? यानी कि 7 by 5 into 5 कितना आ गया लेंस? जैसे उसका 4 से 6 हुआ था, यहां 5 से क्या करेंगे? जितने का ये एंगल उतने का ये कर दिया, खत्म आंसर। हो गया नहीं? क्लियर हुआ? एनी डाउट टू इट? इट इज बेसिकली द कॉपी ऑफ द प्रीवियस वन, बल्कि उससे ज्यादा इजी है। उसमें तो कोई ये तो है नहीं कि ए का BC से डिस्टेंस कोई गिवन है। उसमें तो गिवन था ना CL। क्या ये क्लियर है? हो जाएगा या नहीं? दिस इज द कॉपी ऑफ द प्रीवियस वन। इसी तरीके से फिफ्थ भी हो जाएगा नहीं? दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 4th। फिफ्थ के लिए क्या करेंगे? उसे कुछ पूछना हो पूछेगा, आप बात मत करो प्लीज। फिफ्थ क्वेश्चन, AB है 6.5, B पे कितने डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री का, और BC कितना होना चाहिए? 5.5। AC कुछ भी हो, ये कितना होना चाहिए? 5.5। बन गया ट्रायंगल जो चाहिए। इसके साथ ही हमने क्या ट्रायंगल करना है? क्रिएट 3/2। अब तो बाकी तो तुम्हें मालूम है क्या कर लोगे। राइट? फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है इसी तरीके से सिक्स्थ है, सिक्स्थ भी कर लोगे। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूं? क्लियर? सेवंथ करके दिखाओ। सेवंथ का हिंट ये है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर ये जो वर्टेक्स है इट ऑलवेज लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। दैट्स इट। करो, सेवंथ का आंसर निकाल के दिखाओ अभी। सेवंथ में हम क्या करेंगे? 3/4 है तो ट्रायंगल क्या बनेगा? जो नया ट्रायंगल बनाना है अंदर बनेगा ना, तो नीचे की तरफ हम कितने पॉइंट्स लेंगे? 4। बस करो।
जिसको डाउट है प्लीज यहीं देखें, मैं इसे आपके सामने कर रहा हूं। हमारे सामने बेस है 9 सेंटीमीटर का, तो 9 सेंटीमीटर की मैं एक लेंथ क्रिएट कर रहा हूं। जो कॉन्फिडेंट है वो खुद करें। बीसी कितना आ गया 9। फिर मुझे क्या करना है, ए वर्टेक्स निकालना है इस ट्रायंगल का, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। तो आधे से ज्यादा में मैंने आर्क यहां लिया, यहां लिया, और इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्रिएट कर दिया। बड़ा हल्का लिया मैंने यहाँ, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। अब इसमें क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर जो वर्टेक्स होता है वो वर्टेक्स ऑलवेज लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द बेस बीसी। तो अब ए बी की कितनी की गिवन है वो, हाँ एल्टीट्यूड कितना है 5 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगा, यहां से 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लूंगा और यहां से इसे कट कर दूंगा, ठीक है ना, और कट करते ही इसे ज्वाइन कर दूंगा। मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। मेजर करके देख लो, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये थ्योरम भी किया हमने, एग्जाम्पल था एनसीईआरटी में 9th क्लास के अंदर, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में, वेयर ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर मैं यहां पर भी ले लूं, यहां भी ले लूं, यहां भी ले लूं, तो ऑब्वियसली इट विल ऑलवेज बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द 2 पॉइंट्स मेकिंग द लाइन। ये ट्रायंगल हमने आपस में सिमिलर प्रूव करना है। हम नीचे भी लेते थे, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, यहां से यहां, याद है। फिर इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव किया था, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के अंदर। इस तरीके से हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को बना दिया। और अब साइड कौन सी लेनी है हमें, 3/4। तो हम नीचे का एक्यूट एंगल बना देंगे, और एक्यूट एंगल बनाते ही हम एक अच्छी खासी लेंथ ले लेंगे, 1 आर्क लेंथ, 2 काम आसान हो जाए इससे, 3 4। ये हो गया B1 B2 B3 B4। सिंपली B4 को किससे ज्वाइन कर देंगे, C से ज्वाइन कर देंगे। 3/4 लेना है हमें, तो 1 2 3। अब मैं एक लाइन लूंगा, B2 से यहां मैं सेंटर ले रहा हूं, इसको कट कर रहा हूं। ये हमारा हो गया C डैश, और फिर यहां से इस आर्क को लिया, इस आर्क को लिया, ए डैश। तो ए डैश B C डैश इज अवेलेबल, राइट। हो गया ना। तो आप देखिए स्क्रीन पे भी आपको सिर्फ ट्रायंगल ही दिखाई दे रहा हो, बाकी हेल्पिंग कंस्ट्रक्शन बिल्कुल फेंट होनी चाहिए। बेटा ये वाला ना सर्कल वाला आपने निकाल के देखना 2 सेंटीमीटर, इसके क्लास के निकाल, दूसरा भी निकाल दो और डिस्ट्रीब्यूट कर दो। प्लीज डू इट। आ रहे हैं आंसर्स। सिद्धार्थ आ रहे हैं बेटा।
भव्य हो गया ना बेटा सब? आ रहा है ना आंसर पारस? कैसे बनेंगे पैरेलल? यहाँ से ले, कोई भी आर्क ले लें, वही आर्क मैंने यहाँ लिया। तो बेटे यहाँ से मैंने ये आर्क लिया, इसे ज्वाइन कर दे। क्या बेटा? हाँ 4 पॉइंट्स लिए ना। क्या BC पे? क्या यहाँ 4 पॉइंट लेने के, अगर हम यहाँ लेंगे तो हमारा सारा एग्जीक्यूशन ही गलत हो गया। एक्चुअली यहाँ हमें खुद से नहीं लेना, ये क्रिएट करना है हमें। क्रिएशन के लिए हमने ये हेल्पिंग कंस्ट्रक्शन ली है। अब हमने जो हेल्पिंग कंस्ट्रक्शन ली उससे हमें इवेंचुअली एक पॉइंट मिल गया BC पर, जो कि BC को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 3/4, यानी कि BC डैश की जो लेंथ होगी वो 3/4 होगी BC के, क्योंकि हमने किया क्या, हमने इस लाइन को इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया और ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर हो गया, और इसने हमें यहां पर ये 3 और ये 4 देने में हेल्प की, राइट? तो इस तरीके से 7 क्वेश्चंस आप अपने आप कर लेंगे, राइट? आई थिंक सो यस, आपके पास आ गया होगा आंसर इन सबका। एंड दैट वे वी हैव कवर्ड द फर्स्ट। अब मैं सेकंड पे जा रहा हूं, जो आपको इट्स अबाउट टू मीट, अभी आपको मिलने ही वाला है। अब हम जो कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं दैट आर रिलेटेड टू सर्कल, राइट? कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द टॉपिक सर्कल, टेंजेंट टू सर्कल। अनुज बिल्कुल मत बात कर। इफ दे हैव एनी प्रॉब्लम दे मे आस्क मी, डोंट टॉक एट ऑल। मैं तुझे चौथी बार कह रहा हूं, आई विल टेक यू आउट ऑफ द क्लास। तुम्हें टॉपिक आता है डजंट मीन दैट यू शुड शो दैट यू नो दिस टॉपिक। लेट देम अंडरस्टैंड, लेट देम डू ऑन देयर ओन, डोंट टीच देम। अब एक क्वेश्चन है यहां पर कि हमें 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं सर्कल से, किसी एक पॉइंट से। इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस नोन है हमें, वो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, मान लिया वो पॉइंट P है। तो ये कंस्ट्रक्शन हमारी होगी वेयर वी नो द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम द सर्कल हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज नोन टू अस, राइट? तो अब हम पहले वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें बाहर के पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस गिवन है। ऐसा भी हम क्वेश्चन करेंगे जब पॉइंट P वो कहीं भी हो सकता है सर्कल के बाहर, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, एनीवेयर। जैसे यहां ले लिया मैंने, उसका सेंटर से डिस्टेंस हमें मालूम ही नहीं है। तो 2 तरह की कंस्ट्रक्शन हो गई, राइट? एक कंस्ट्रक्शन तो हुई जिसमें वी नो द डिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, and the second one we don't know the distance of the external point from the center, right? That makes 3 to 4, in fact 7 to 8 questions, right? तो हम पहला काम क्या करेंगे, यहां पर एक सर्कल हमें क्रिएट करना है जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर,
we will construct a circle of radius 2 centimeter and take a point P, ध्यान से सुनो भी आपको MIQ मिल ही जाएगा, and take a point P outside the circle such that OP is what 4.5 centimeters. This is 4.5 centimeter given to us. Right? First step, create a circle. Second step, make a point, line OP equal to 4.5. Third step, draw the perpendicular bisector of OP. Perpendicular bisector आपको create करना ही आता ही होगा. That should be equal to this. Right? And let this point is known as O dash. या इसको आप क्यू भी कह सकते हो. तो पी क्यू एंड क्यू दोनों इक्वल होना चाहिए. और यहां से एक आप सर्कल ड्रॉ करेंगे. राइट? ये मेन सर्कल है, ये हेल्पिंग सर्कल है. और जो हेल्पिंग सर्कल है मेन सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, एक टी पर और एक टी डैश पर. इज दैट क्लियर? सो दिस इज आवर मेन सर्कल. जो कि टी और टी डैश पे कट कर रहा है. और यहां हमने क्या किया, ओपी लिया, इसका सिंपल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, जो कि ये सर्कल मेन सर्कल को इस पे कट किया. अब यहां से इसे ज्वाइन कर दिया और यहां से इसे ज्वाइन कर दिया. तो पी टी एंड पी टी डैश दोनों की लेंथ सेम आनी चाहिए. दैट्स व्हाट वी नो, दैट द टेंजेंट्स बीइंग ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ. जस्ट डू इट कि क्या ये हो पा रहा है या नहीं. एंड आल्सो मेजर द लेंथ ऑफ पीटी. पीटी की लेंथ को भी मेजर करके बताओ. है बेटा? रेडियस 2 सेंटीमीटर लेके करना है. MIQ. इसी की जेरॉक्स दे दे, आपको नहीं मिल रहा तो. नारायण, इसी की जेरॉक्स दे दो. मिल नहीं रहा? आप ही ने तो निकाला था. जल्दी दो मुझे, फिर वापस करो मेरा. तो
आ गया ना 4 ये, हाँ एक्चुअली आंसर तो मेरे पास नहीं है, लेंथ सेम आनी चाहिए और सभी की सेम आनी चाहिए। टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, लेंथ अपने आप इक्वल आएगी। हो गया? कितना है लेंथ? 4.7 एग्जैक्टली 4.5 यानी कि अप्रोप्रिएट आंसर है इसका। बेस्ट आप अप्रॉक्स लिख देना अगर डेसिमल में है तो, राइट? लेकिन 4 और 4.5 में तो बहुत डिफरेंस है, बिल्कुल ही गलत है सर। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? 2 लिया आपने, ओपी 4.5 लिया, ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, रेडियस मिल गया नए सर्कल के लिए, और नया सर्कल को मेन सर्कल 2 पॉइंट में कट कर रहे हैं, मेजर कर दिया। कुछ तो कंस्ट्रक्शन में गलती की है इसलिए ऐसा है, बिल्कुल गलत है। फिर ये तुम्हारा गलत है, इनका अप्रोप्रिएट आंसर है, मैच कर रहा है। नहीं बना के दिखाऊं क्या है? ये देखो मैं भी बना के दिखाता हूँ। रेडियस होना चाहिए 2 सेंटीमीटर। जरा देखते हैं भाई, अभी क्लियर हो जाएगी पिक्चर। सेंटर कहाँ गया? ये देखो, अब मैं सेंटर है ना यहाँ पर, सिर्फ 4.5 ले रहा हूँ। ये भी क्लियर हो जाएगा। ये हो गया P, ये है O। अब OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, थोड़ा सा बड़ी आर्क लेंगे, राइट, और इसको ज्वाइन कर दिया। राइट, अब ये यहां कट किया, इसको ज्वाइन कर दिया। 4 देखो, मेरा 4 आया आंसर। बताओ तुम इस कंस्ट्रक्शन को नहीं कर पा रहे। एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन देखना तुम्हें फिर कितना भारी पड़ने वाला है। ये 4 सेंटीमीटर नहीं आई लेंथ, 4 सेंटीमीटर। मैंने तो 4 निकाल दिया आपके सामने, समझ में आया मैंने किया गया था। यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गलत ड्रॉ किया है तुम लोगों ने। अब लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, तो वो तो 9th क्लास में जाना पड़ेगा। ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देन क्रिएट, यू विल गेट अनदर रेडियस, हेंस द आंसर, राइट। अब एक प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाओ, फिर इसकी भी लेंथ बताओ। अब तो ठीक करना, राइट। 4th क्वेश्चन करो अभी। फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा या नहीं? सेंटर से क्या डिस्टेंस गिवन है पॉइंट का? 4th क्वेश्चन। आ रहा है, कोई डाउट है? मांगा क्यों नहीं? वो आया तो था बांटने के लिए, आप तो मांग लेते आप। एमआई क्यों नहीं मिला? आर्या को नहीं मिला, और किसे नहीं मिला?
फर्स्ट नहीं मिला, ओहो मेरे पास है, हाँ हाँ ठीक है, ले बेटा। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स आपको ट्यूसडे को मिल रहा है, MIQs का, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का बहुत अच्छे लेवल पर मैं तैयार किया है उसको, 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली हैं। अभी बताता हूँ, अभी लगती थी। फर्स्ट टर्म ऑफ कौन आएगा इस बार आपको मंडे के टेस्ट में, और कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन फर्स्ट टर्म ऑफ कौन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, पूरा होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कंप्लीट, और कंस्ट्रक्शन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या डिस्टेंस गिवन है P का सेंटर से, अरे हो रहा है, अरे अलग नहीं आना चाहिए, नहीं प्रॉपर लेंथ ही आएगी, देखना 6.3 समथिंग नहीं आना चाहिए, 6 ही होगा फिर, वो तो प्रिसाइजली हो जाता, कोई बात नहीं, 6 ही लिखो उसे। पेंसिल की एक्चुअली पेंसिल से भी तो दिक्कत आती है ना हमें, कई बार उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, वो भी सारी एक्चुअली बिल्कुल फेंट पेंसिल यूज़ करनी है आपने, H या 2H पेंसिल को ले लो आप जल्दी से, 6 होना चाहिए इसका आंसर। क्या हो गया फोर्थ क्वेश्चन, राइट? कोई डाउट फोर्थ में, सभी का आंसर आना चाहिए, राइट? हाँ किससे? एग्जैक्टली अगर तुम्हें लगता हो ना कि कंफर्म है कि तुम्हारा डेसिमल्स में आंसर आ रहा है तो अप्रॉक्स लिख देना साथ में, तो उससे तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट? अप्रॉक्स जरूर लिखना है, क्योंकि 6.2 भी ये भी हो सकता है कि 6.15 हो, 6.199 भी हो सकता है, इतना प्रिसाइज होता नहीं, इसलिए अप्रॉक्स लिख देना, राइट? दैट्स इट। और अगली क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। अभी बाकी के बचे हुए क्वेश्चन, अभी हमने जितना भी किया इतने की प्रैक्टिस करना है आपने सारे क्वेश्चंस को, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसे आगे, that would be the last class as far as the normal syllabus is concerned.
अब मैं साइंस पर आ रहा हूँ, भेज दो बेटा। आपकी यहां से शीट चेक हुई है, लेकिन वो रिंकू किसी कारण से छुट्टी पर है आज, वो सारी उसी के पास है, मैथ एज वेल एज साइंस। है बेटा, दे दी थी ना, ठीक।